Well, students, today we'll start with inverse of matrix. Inverse of matrix. Inverse of matrix using elementary transformations. Elementary transformations or operations. What is inverse of matrix? We have studied this in the properties of algebra of matrices. We have seen that if A and B are two square matrices and AB is equal to BA is equal to I, then B is said to be inverse of A. If A and B are two square matrices such that AB is equal to BA is equal to I, then B is equal to A inverse. B is said to be the inverse of A. If A and B are square matrices and AB is equal to BA is equal to I, then B is inverse of A. Now, सबसे पहले तो हमें यह पता करना है क्या इनवर्स सभी मैट्रिक्स का, सभी मैट्रिसेस का एग्जिस्ट करता है? नहीं. वी हैव सीन देयर जब हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज को किया था, इनवर्स जो है वो सभी मैट्रिसेस के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस. व्हाई? बिकॉज for inverse AB must be equal to BA is equal to I, where I is identity matrix of same order. But suppose if we are having two matrices which are rectangular, A का ऑर्डर मान लीजिए A का जो ऑर्डर है वो 2/3 है, B का ऑर्डर 3/2 है, तो AB का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ AB will be, see from here, number of columns of first must be equal to number of rows of second. सेटिस्फाई कर रहा है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो रिजल्टेंट का ऑर्डर है वो 2/2 है. सो डेफिनेटली the order of I will not be same to order of AB. So पहली बात आप याद रखें, inverse will not exist for all rectangular matrices. Rectangular matrices जितनी हैं उनका inverse exist नहीं करेगा. Inverse will exist only for square matrices, because square matrices में उनके प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिसेस हैं. तो इसलिए स्क्वायर के लिए भी लेटर ऑन विल स्टडी इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर फ्यू, दैट इज नॉन सिंगुलर, फॉर विच द डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. विल स्टडी इट लेटर ऑन. लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स जो मैट्रिसेस हैं हमारी उनके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. नाउ टुडे विल डू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. What is elementary transformations? Now, elementary transformations are of two type transformations, that may be row transformation or column transformations. हैं क्या? सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करें कि transformations क्या हैं. For example, we are having equation 2x plus 3y plus 4z is equal to 2, 6, 19, and we can take another equation that is x minus y plus z is equal to
2, and third we can take x plus z is equal to 4. Suppose we are having these three equations. Basically, the term matrix is evolved for the solution of linear equations. For the solution of linear equations, I told you. First British mathematician who has evolved this term matrix for the solution of linear equations. अब देखिए ये तीन इक्वेशंस हमारे पास हैं. अगर इस इक्वेशन को तीनों का सॉल्यूशन हमने निकालना है, चाहे वो बाय एलिमिनेटिंग कोएफिशिएंट्स हो, या अगर इसमें हम इस इक्वेशंस को यहां ले जाएं, इस इक्वेशंस को यहां ले जाएं, इसको यहां ले जाएं, इसको यहां ले जाएं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. मतलब अगर इन इक्वेशंस को ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसी तरह से एक्स वाली टर्म को इधर रखें, वाई वाली को इधर रखें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. सो दैट इज नोन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. नाउ सी, अगर इसका हमने मैट्रिक्स में फॉर्म करना है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी 2 3 4, 1 -1 1 1 0 1, और जो हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स है वो बनेगा x y z, और जो हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो बनेगा 19 2 4. सी, नाउ if this is constant matrix, this is variable matrix, this is constant matrix, this is coefficient matrix, this is variable matrix. ये तीन मैट्रिक्स हैं, and then we know ax is equal to b. इस तरह से ये इक्वेशंस बनी हुई. अगर हम इस coefficient मैट्रिक्स को वेरिएबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और उसको इक्वेट करें कांस्टेंट मैट्रिक्स से, तो ये हमारा जो है ये बन गया हमारा linear equations in form of matrices. So we made this system. Now see, अगर हम इसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर इन दो रोज को चेंज करें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. तो इसी को जो चेंज ऑफ रोज या चेंज ऑफ कॉलम्स, इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम्स हैं, इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं. तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके हमने इनवर्स निकालना है. टुडे we are taking this inverse of matrix using elementary transformations. Linear transformations we can call elementary transformation, elementary operations, because जो net operated value है, जो net transformation transformed value है मैट्रिक्स की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर हम इनको रोज को इंटरचेंज करें, कॉलम्स को इंटरचेंज करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं. अब जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये बेसिकली इट इज ऑफ 3 टाइप्स. लेकिन जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हम रोज पे लगाएंगे तो 3 टाइप की वो होती हैं, और कॉलम्स पे लगाएंगे तो 3 टाइप की वो है. तो जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, I told you that it is of basically 3 types. First is Ri interchanges to Rj. मतलब पहली रो को दूसरी में बदलें या दूसरी को पहली में बदलें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और अगर कॉलम्स के अंदर इसी को लगाना है तो Ci changes to Cj. 3 टाइप का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल है बेसिकली, and in total if you will say, so it is of 6 types. दूसरा है Ri is interchanging to Krj, और कॉलम्स में इसी को लिखेंगे Ci is interchanges to Kcj. Ri Rj का मतलब क्या है? एक मैट्रिक्स है हमारे पास, 1 2 3 4. अगर हम इस रो को, पहली रो को, जो पहला हॉरिजॉन्टल लाइन है, पहला रो है मैट्रिक्स का, उसको दूसरी बना दें, दूसरी को पहली बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जो सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स है, जो नेट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है, वो ऑपरेटेड वैल्यू जो है वो सेम रहेगा. इसी तरह से अगर ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, अगर इसके रो को हम ऐसे चेंज करें, सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड इट फॉर कॉलम्स ऑल्सो.
अगर ये हमारा रो है, इस फर्स्ट रो को सेकंड रो में कन्वर्ट कर दें, कैसे? RI इंटरचेंजेस टू KRI, यू कैन से कि हम उस रो को, पूरी रो को KRI, मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज दिस चेंजेस टू 2 4 3 4, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड है RI इंटरचेंजेस टू RI प्लस KRG और CI interchanges to CI plus KCG, मतलब किसी भी रो को, यदि यही मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4, इसमें अगर किसी रो को हम ऐसे चेंज कर दें कि R1 को हम चेंज कर देते हैं R1 प्लस 2R2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब सेकंड रो को, कॉलम जो हमारा सेकंड रो है, फर्स्ट रो को ऐसे चेंज कर देते हैं R1 प्लस R2, 1 प्लस 3 2 जा 6, तो कैसे चेंज हो गया ये? 1 प्लस 6 इज 7, 2 प्लस 8 इज 10 एंड 3 4। सेकंड रो को नहीं बदलना है, जिस रो के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उसी में चेंज आएगा। अगर R1 को चेंज करें R1 प्लस 2R2, तो उसी में चेंज आएगा। इसी तरह से जब हमने इसको चेंज किया, पहले में दूसरे को पहले में, और इधर कौन सा ऑपरेशन लगाया हमने? RI इज इक्वल टू KRI, मतलब R1 को हमने ऑपरेट किया, चेंज किया KRI 2R1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2R2 कर सकते हैं हम। किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दीज आर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। सो बाय यूजिंग, वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय अदर मेथड्स आल्सो। विल डू वन मोर मेथड इन द नेक्स्ट चैप्टर बाय कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और वी कैन से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से भी हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे निकालते हैं, तो इसमें 3 टाइप का ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। पहला है RI इंटरचेंजेस टू, दोनों तरफ को एरो मतलब एक दूसरे में बदल सकते हैं, और अगर सिंगल आप करेंगे तो R1 चेंजेस टू, ऐसे रीड करेंगे इसको। सो RI इंटरचेंजेस टू, यहां हम KJ लिख सकते हैं। वाई? क्योंकि इंटरचेंज कर रहे हैं दोनों को। तो और थर्ड है RI प्लस KRJ। तो ये 3 टाइप का जो हम मैट्रिक्स के अंदर, यदि इनको आपस में बदलें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि दूसरी रो को मल्टीप्लाई करके उसकी जगह लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3, और इन टोटल अगर आप कहें 3 कॉलम वाली हैं, 3 ये हैं और 3 ये हैं, ये 6 जो आपकी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। By using these transformations, we can find the inverse of matrix. Now next is, इसमें आपको याद रखना है कि जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से लगाएंगे, करना कैसे है, इनवर्स कैसे आएगा। इनवर्स में हमने देखा कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, तो ये हमारा इनवर्स होता है। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशंस, रो ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हम क्या करेंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशंस, व्हेन वी विल अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशंस, हम लेंगे A इज इक्वल टू IA, वेयर A इज गिवन मैट्रिक्स, IA लिखेंगे। एंड फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, we will take A is equal to AI. How? हम इसके ऊपर देखिए, जब सबसे पहली बात तो यह है कि इनको लेते क्यों हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हम IA लेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए AI लेंगे। Why?
because there is a principle. The linear row transformations of product of two matrices, every row transformations of product of two matrices will be affected subjecting to the pre-multiplying factor to the same matrix transformation. मतलब अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो उसमें जो पहले वाली जो मैट्रिक्स है जो अफेक्ट करेगा ट्रांसफॉर्मेशंस को, पहले वाली मैट्रिक्स प्रोडक्ट में प्री फैक्टर अफेक्ट करेगा और कॉलम में पोस्ट फैक्टर। तो इसलिए ये प्रिंसिपल है फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशंस वी विल टेक A is equal to IA and for column transformations we will take A is equal to AI. नाउ करना कैसे है, हम A के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे, इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे हम I में। सो I किसके बराबर हो जाएगा, ये कोई मैट्रिक्स आ जाएगी B और A एज इट इज रहेगा। सो B इज द इनवर्स ऑफ A। दिस इज द प्रोसेस। इसके ऊपर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से अप्लाई करेंगे। वी विल डू सम प्रॉब्लम्स। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। सो इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखेंगे, सेम आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इट इज ऑफ 2 by 2 ऑर्डर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा बनेगा 2 by 2 ऑर्डर का दिस इज इक्वल टू ए। अब हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन से लगाते जाएंगे, तो जो प्री फैक्टर है इसके ऊपर प्री दो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस है, तो ये प्री फैक्टर है पहले वाला। तो इसके ऊपर जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से लगाते चलेंगे तो ये इसको हमने आइडेंटिटी बनाना है और ये अपने आप एक मैट्रिक्स बन जाएगी। जो ऑपरेशन इधर लगाएंगे उसी को इधर लगाना है। अब मान लीजिए इसमें हमने R1 चेंजेस टू R2 लगाया, तो वही ऑपरेशन इसमें लगाना पड़ेगा और ये मैट्रिक्स को किसमें बदलना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है हमने I। देन ये जो मैट्रिक्स आपका है, ये कोई भी मैट्रिक्स आ जाएगा इसका, जब इसमें भी हम वही ऑपरेशन से लगाते चलेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये कोई नया मैट्रिक्स बनेगा B। सो B इज द इनवर्स ऑफ A। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स के अंदर भी जो हमने चेंज करना है वो I के अंदर चेंज करेंगे। इसको बाद में लिखेंगे I को। क्यों बाद में लिखेंगे, बिकॉज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर जो अफेक्टेड होती है ट्रांसफॉर्मेशंस, वो सब्जेक्टिंग होती है हमारी पोस्ट फैक्टर जो बाद वाली जो मैट्रिक्स है उसके लिए। तो इसलिए हमने इसमें जब ये मैट्रिक्स को एज इट इज रखेंगे, I को चेंज करेंगे, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा हमारे पास I इज इक्वल टू AB। सो इसमें भी B इज द इनवर्स ऑफ, बिकॉज इनवर्स कब होता है, AB इफ AB इज इक्वल टू B इज इक्वल टू I। तो B इज द इनवर्स ऑफ A। सो दिस इज द elementary transformations for finding the inverse of matrix। तो ये दो टाइप का आपको याद रखना है, रो ट्रांसफॉर्मेशंस, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर हम इसमें एक प्रिंसिपल है, अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना है, अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना है। वो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि 3 इक्वेशन है, x y प्लस z इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर एक बार हमने रो को चेंज किया, इंटरचेंज किया, तो हम उसी तरह उसको चेंज करते जाएं, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने रो चेंज किया फिर दूसरी बार कॉलम चेंज किया, सो देयर विल बी अ चेंज इन वैल्यू। तो इसमें या तो रो ट्रांसफॉर्मेशंस ही लगाते चलेंगे टिल लास्ट, और यदि आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ही एट लास्ट तक हम लगाते चलेंगे और वी विल फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ there are two basic properties of inverse of matrix, so we'll try to understand. First is inverse of matrix is theorem 1, inverse of matrix is unique, किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो एक होगा, दो नहीं हो सकते।
अगर कोई भी मैट्रिक्स हम लेते हैं और वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसके दो इनवर्स नहीं हो सकते. सो वी कैन प्रूव इट बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड. कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है कि हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये चीज ट्रू नहीं है. तो AB is equal to BA is equal to I. Call it as 1. Let, therefore you can write over here B is the inverse of A. B is the inverse of A. That is B is equal to A inverse. Let C is also इनवर्स ऑफ ए. ऊपर तो हमने ये देखा कि B जो है वो इनवर्स है. हमने बोला कि C कोई दूसरी मैट्रिक्स है वो भी A का इनवर्स है. सो दिस मीन्स AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू I. अगर C भी इनवर्स है तो AC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू I. ये हमने मान लिया, कॉन्ट्राडिक्शन तैयार कर दी कि एक नहीं होता भाई, दो इनवर्स होते हैं. B भी इनवर्स है और C भी इनवर्स है का. वी कैन राइट हियर दैट इज C इज इक्वल टू A inverse. B, how we can write B? B can be written as BI. Okay, and what is I? I is equal to, you can say AC. AC के बराबर है I. कहां से? You can call it from 2 because of 2. अगर ये AC के बराबर है, so this implies B is equal to B in B AC. Now B multiplication of matrices is associative in nature, so we can write it B into C. एसोसिएटिव होती है नेचर में मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. सो दिस इंप्लाइज B इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BA? IC, दैट इज इक्वल टू C. सो देयरफॉर B इज इक्वल टू C. देयरफॉर बाय कॉन्ट्राडिक्शन हमने तो माना था कि इसके दो इनवर्स है, लेकिन कितने इनवर्स हैं? यूनिक है. बाय कॉन्ट्राडिक्शन इनवर्स ऑफ E इज यूनिक. सो वी कैन से दैट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक, और यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. नाउ वन मोर थ्योरम इज देयर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो. Theorem 2, that is for two invertible matrices, AB inverse is equal to B inverse. AB inverse is equal to B inverse A inverse. This is also an important result. You can prove it. AB inverse, AB into AB inverse is equal to I. Because किसी भी मैट्रिक्स को, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स है, उसके इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू I. Now this implies if we will प्री मल्टीप्लाई फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और प्री मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर है हमारा उसको हमने ले लिया A इनवर्स दोनों का, बिकॉज दिस इज एन इक्वेशन. तो ऑन द बोथ साइड वी कैन मल्टीप्लाई बाय प्री मल्टीप्लाइंग फैक्टर. मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. सो दिस इंप्लाइज
ए इनवर्स ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई इज ऑलवेज इक्वल टू ए इनवर्स, क्योंकि आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, इसको जिस मर्जी मैट्रिक्स से हम गुणा करें वो सेम मैट्रिक्स हमारे को मिलेगा। वी हैव डन इट इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में। इसके बाद ये आई बन गया आई बी ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। देखिए इधर ए इनवर्स आई, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें वो आई के बराबर होगा। हमने अभी देखा था ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, सो यहां पर आई बी हो गया। नाउ आई बी कैन बी रिटन एज बी, क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करें तो हमें हमेशा वो ये प्रॉपर्टी है कि ए आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई, ये हमने किया है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये बी बन गया बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर देते हैं दोनों को, या प्री मल्टीप्लाइंग हमने किया था पहले ए इनवर्स से, अब बी इनवर्स से कर देते हैं। सो दिस इंप्लाइज बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। फिर प्री मल्टीप्लाइंग by b dash on b inverse on both sides। अब b इनवर्स b किसके बराबर होता है? i के। i ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स। so i into any matrix is again equal to that, so ab whole inverse is equal to b inverse a। so these two theorems are very important in the examination point of view। अभी हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले कि इनवर्स क्या होता है। इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके हम कैसे इनवर्स निकालते हैं। वो अगर हम दो टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन है और एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो टिल लास्ट हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, और यदि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो टिल एंड हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। और दूसरा हमने देखा कि एक जो इनवर्स है मैट्रिक्स का वो यूनिक होता है, और ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। नाउ बाय जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, मैंने आपको ये प्रोसेस भी समझाया कि ए इज इक्वल टू आई ए और ए इज इक्वल टू ए आई को हमारे को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस क्यों लगती है? बिकॉज ये लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, तो यदि हम इंटरचेंज करते हैं इक्वेशंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।